करो रुको जरा सबर करो. A few moments later. Hello everyone, my name is Kanchan Rathore and I am student of second year BSc Nursing and I welcome all of you to my channel again. And today I am having three of my friends with me and we are going to talk about honestly about AIIMS Jammu, AIIMS BSc Nursing exam and its registration, its cutoff and all. So first of all, we will be having a quick introduction including your name and the city or the state you belong to. So I'm going to start with Sarita. Please go ahead, Sarita. Okay. I'm going to start it with Kanchan. So hello guys, my name is Kanchan and I'm from Delhi and I'm currently at AIIMS Jammu, BSc Nursing second year student. Okay. Hello guys, myself Anisha and I am from Rajasthan and district Nagaur. Hello everyone, myself Sarita Bhuria and I am from Sikar, Rajasthan. Okay. So we're going to start this discussion. So now the first question which I'm going to ask is from Anisha. The first question is, exam is actually required for BSc Honours Nursing in AIIMS. If one gets into the AIIMS, then what exam he or she has to give? Firstly, the main doubt of people is that it is need based or other exam. So it is not need based. मतलब इसका एक अलग से एग्जाम होता है. एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि नीट नहीं कंडक्ट करवाती, हमारी करवाती सेंट्रल गवर्नमेंट ही है. मतलब हमारी एम्स दिल्ली इसका मेन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, नीट के थ्रू नहीं होता है. और दूसरा ये कि इसमें ये ऑनलाइन होता है. जैसे नीट हमारा ऑफलाइन एग्जाम है, हम पेपर पे बेस्ड करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम होगा. और मेनली सेंट्रल बोर्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है. और इसके लिए हमारा कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है, बस 12th पास होना चाहिए, वो भी बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ. इसके अलावा जीके आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो किसी को आती नहीं है साइंस में, बट तो इस एग्जाम में आ जाती है. वो सब इक्वली होते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं करती ज़्यादा खास. Okay, so I hope the first question and its answer is clear to you all. So now I am moving towards the next question, which is Sarita Bhuria. So Sarita, can you please tell us when does the AIIMS BSc Nursing registration starts and what's the process? देखो बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन है वो है Go ahead. बेसिक She is bit चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी, बहुत हो गया मजाक. See, यार ये इसे काहे नहीं बोलते हैं? मैं तो A few moments later. A few moments later. जो बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे अप्रैल से शुरू होते हैं. जो फर्स्ट टाइम एम्स का फॉर्म फिल करता है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके 24 आवर्स बाद जब वो हमारा कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाता है. और इसकी जो एग्जाम है वो जून में होती है, जुलाई में आपका रिजल्ट आता है और 1 अगस्त से आपका नया सेशन शुरू हो जाता है. Okay, that was a well explained answer, I must say. Now I am moving to the I'm silent. The third question, which is to Kanchan Mehra. So my third question is AIIMS. So when you got the AIIMS Jammu after giving the AIIMS BSc Nursing exam, so nursing or AIIMS BSc Nursing is a passion or was a passion or a pressure on you? To be honest, it was neither a passion nor a pressure. I will say that I never thought that I will get the AIIMS Jammu or I will ever adopt the AIIMS Nursing. But the truth is that I did not get seat in the NEET or the MBBS. So by chance I got the nursing scheme and here I am. Okay, that's nice. I think whatever happens for good. And now we are go with the flow, and we all should, we should know the art of let go. So now with that, I'm moving ahead to the next question, which is question number 4. And again, this question is gonna be to our Sarita. So 4th question, Sarita. Okay, should I ask it? Should we go? Sure. Are you comfortable? Okay. Yes. So how you got to know about this exam, which is AIIMS BSc Nursing exam, and what was your first thought when you got to know about that
AIMS nursing is only for girls, there is no boys. देखो, जब हमारी नीट का फॉर्म फिल हो रहा था तो बेसिकली हमें कोचिंग में बताया गया था कि एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एक पेपर होता है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। एक बार के लिए मैंने ऐसे सोचा क्या यार केवल लड़कियां होगी, सब बोल सोच रहा है कि हम बहुत मजे करते हैं। The best group of AIMS. Yeah, we can clap for ourselves that we are with each other. हम लड़के भी Yay! खूब है तो हम खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। Yeah. And happily this friendship will stand forever. Yeah. Yeah. So, and with all that positivity, I'm moving ahead to the next question. The question is to Kanchan again. Kanchan, can you please tell us what is the eligibility criteria for this exam and what is the exam pattern? Like what ones need to get fulfilled if he wants to get AIMS Jammu or BSc Nursing exam he wants to attempt or she wants to attempt? Then what? First of all, this exam is only for the girls, and the eligibility criteria is PCB 12 plus and Yeah. PCB होनी चाहिए हमारे पास 12th में, और ये 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है। और इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आपको PCB तीनों स्कीम आपको है ना 60% आपकी होनी चाहिए, लाइक अबव 60 और 60%, देन यू कैन गिव द एग्जाम। और इसके अंदर हमारे इसके अंदर हमारे 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज द फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायो, और 4th हमारा जीके होता है। जीके सिंपली जीके इतनी टफ नहीं होती है, लाइक वो सिंपली होती है कि आप तुक्के भी मार के उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हो। और उसमें करंट अफेयर्स मेनली उसके अंदर आते हैं, और कुछ उसके अंदर लाइक मेंटल मैथ्स और रीजनिंग आती है। तो जीके इतना टफ नहीं है, लाइक आप उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो कि आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आते हैं तो आप उसको कर सकते हो, बट आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी पीसीबी पे। और इसकी जो फिजिक्स होती है वो थोड़ी सी टफ होती है कंपेयर टू द नीट एग्जाम। सो दैट्स इट। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, मतलब एज लिमिट नहीं होती है। स्टार्टिंग ये 17 ईयर से होता है जैसे कि नीट होता है, लेकिन एंड नहीं है इसका, कोई भी कितने भी अटेम्प्ट दे सकता है पर्सन। और गाइस अगर मैं जीके की बात करूं तो जैसे हमारी स्कूलों में जीके की क्विज होती है, तो उसको भी अगर आपने एक बारी भी ध्यान से सुना है ना तो मेरी जीके में 10 में से 9 क्वेश्चन करेक्ट थे। Okay, that's nice. So, can you tell us like what is the total amount of question in this CBT pattern? 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 30 बायो के होते हैं, 30 फिजिक्स के होते हैं, 30 केमिस्ट्री के होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो है वो आपकी जीके के होते हैं। Okay. नेगेटिव मार्किंग। Negative. What about the negative? नेगेटिव मार्किंग -1/3 होती है। Okay. Okay, that was well explained by both of you. Now I'm moving ahead to our next question, which is not a very this side of question about the frequently asked by you. So now I'm going to ask a bit out of the track question to my friend Anisha. So the question is, Anisha, how your family and friends, reacted when they got to know about that you got AIMS Jammu? फर्स्टली रिजल्ट आया था शाम में, मेरे पापा घर से बाहर थे, मम्मी काम कर रही थी किचन में, मैं मस्त फोन चला रही थी अपने भाई के साथ। अचानक रिजल्ट आया, मैंने देखा रिजल्ट में एम्स जम्मू। मैं सोच रही थी कि शायद मेरे घर वाले कभी मानेंगे नहीं, अगर चलो एमबीबीएस में अगर एम्स जम्मू मिलता तो हाँ वो तो भेज ही देते, लेकिन नर्सिंग में भी एम्स जम्मू इतना दूर और इतनी रिस्की एरिया में। तो फिर मैंने ऐसे ही जाके मम्मी को बोला कि हाँ एम्स जम्मू मिला है। मम्मी ने भी थोड़ा सोचा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े खुश हुए, ठीक है। फिर बोले पापा का आने का इंतजार करते हैं। फिर पापा घर पे आए, मैंने पापा को बताया, पापा खुश थे कि ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि हम लोग की सिलेक्शन हो, चलो नीट में नहीं हुआ इसमें हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी घर वाले हैं, सेफ्टी पर्पज से थोड़ा सा उनको भी रहा कि हाँ रिस्की एरिया है, भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, ऊपर से लड़की है भेजेगी नहीं भेजे। उसके बाद में मेरी दीदी है जिनकी शादी हो चुकी है, मैंने दीदी को कॉल किया, दीदी भी खुश थी कि ठीक है। फिर जीजू से बताया, जीजू मेरे आर्मी में है तो उनकी इधर पोस्टिंग हुई हुई थी, उनसे बात की मैंने। फिर उन्होंने हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर किए जगह के बारे में कि कैसी जगह। उन्होंने कहा कि नहीं नॉर्मल अच्छी जगह है, कोई वेदर का भी इतना कुछ है नहीं जैसे हम सोचते हैं जम्मू बर्फ होगी पहाड़ होगी, कुछ नहीं था ऐसा। नॉर्मल जैसे राजस्थान का जो वेदर है, दिल्ली का जो वेदर है, सेम वेदर है यहाँ पे, उतनी गर्मी उतनी सर्दी वही बारिश सेम है। तो वो वाला डाउट क्लियर हो गया कि वेदर ठीक है। उसके बाद ये होता है कि हाँ थोड़ा अगर आर्मी वाले यहाँ जॉब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं वहाँ से कॉलेज कर सकते। तो 4 साल की कॉलेज थी, तो फिर जीजू ने, मेरी तो कुछ मेहनत ही नहीं थी, जीजू ने घर वालों को मनाया और ऐसे करके मेरे घर वाले मान गए। और फिर हम काउंसलिंग के लिए आए। काउंसलिंग के लिए जब मैं आई तो मैंने खुद ही देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। और उसके बाद में बस आ गए हम एम्स जम्मू। Like same happened with me. मेरे घर वाले का भी यही रिएक्शन था कि like जम्मू एंड कश्मीर is terrorism and all, but यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, never felt anything like that. हाँ थोड़ी दूरी पे होता रहता है कुछ, but यहाँ तो at least नहीं है यहाँ पे। थोड़ा रिस्क तो सारी जगह। So now we are going to move on to our next question, which is it is a mostly asked question. It's doubt कि अगर nursing एम्स से कर रहे हैं नॉर्मल कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है भाई, दूर क्यों जा रहे हो इतना। So that is a question which is frequently asked to me. So this is a question which I am going to ask to my dear friend of mine, which is Sarita. So Sarita, can you please tell us what are the difference? What is the main difference if one is doing
normal BSc nursing or BSc honors nursing from one government college or a normal college, or if one student is doing that BSc honors nursing from AIMS. So what is the difference, or what is the point of advantage do we have? देखो, अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से जीएमसी से प्राइवेट से नर्सिंग करते हो और एक एम्स से करते हो, तो जब आप उधर से करोगे तो आपकी फीस बहुत लगती है, जबकि एम्स से आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपकी 4 साल की फीस केवल 3,165 रुपए है, जो कि नॉर्मल सी बात है। आपको हॉस्टल रहने के लिए फ्री मिलता है। हमें एम्स में जो है वो रिसर्च करने का मौका मिलता है, जो शायद जीएमसी में यहाँ प्राइवेट कॉलेज से करते तो वहाँ हमें नहीं मिल पाता है। यहाँ हमें एक्सपोजर मिलता है, हम पेशेंट के साथ कितना इंटरेक्ट करते, कितना कुछ हम सीख जाते हैं घूमते फिरते भी। और रही बात, अगर हम बात करें कि हमें इसमें जो एम्स में नर्सिंग है उसका क्या है कि 3.5 साल जो है वो हमारी थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों होती है, और 6 महीने हमें कंप्लीट इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, जहां हम एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करते हैं, सारे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। और इसके अंदर एक ये भी बेनिफिट है कि ये जो एम्स है, एक अपना आपने एम्स एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटीज होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्पेशलिटीज के अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत है फॉर लर्निंग, फॉर स्टडी, और एज अ पेशेंट तुम यहाँ पे भी अच्छा यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। Like we exposed to all the department, like you exposed in the OT, cath lab, in emergency department, in ICU settings. नॉर्मल जो कॉलेजेस होते हैं और जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ऑन्कोलॉजी वहाँ पे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पे जैसे एम्स में आपको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, और वहाँ पे भी आपको काफी एक्सपोजर मिलेगा ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रैक्टिकल और टू द पेशेंट केयर। और सबसे अच्छी बात है, हमें एम्स का टैग मिलता है। पूरे ऑल इंडिया में 1291 सीट्स होती है, उनमें से अगर एक सीट हमें मिलती है तो शायद ये बहुत प्राउड की बात होती है। That's a very right. That's a very important point that you have highlighted. So, Sarita, can you please tell us in AIMS Jammu how many seats do we have? एम्स जम्मू में जो है वो टोटल 60 सीट्स हैं। Okay. So with that, can you please tell us about the stipend? Yeah, we are the first batch. So apart from that, can you please tell us, Sarita, that what is the stipend do we receive in our internship phase? इंटर्नशिप में हमें 13 to 15,000 का स्टाइपेंड मिलता है, और वैसे पर मंथ हमें, जैसे हमारी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होती है, तो उसमें पर मंथ हमें 500 का स्टाइपेंड मिलता है। Okay. So now I am moving on to the next question, which is to Kanchan Mehra again. So Kanchan, can you please tell us about the counseling process and how many rounds are there, and what is the fees structure for the counseling and documents needed at the time of reporting? So जैसे फर्स्टली जब हम एग्जाम देते हैं, हमारे एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि हमारी परसेंटाइल और एक हमारी रैंक डिक्लेयर होती है उसके अंदर, तो अकॉर्डिंग टू द रैंक आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। और इसमें भी ये है कि जब आप काउंसलिंग में स्टेप इनटू करोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलेजेस प्रायोरिटी वाइज आपको अपने फिल करने होते हैं। लाइक अगर आपको चाहिए कि एम्स दिल्ली आपको टॉप पे चाहिए तो आपको एम्स दिल्ली डालना पड़ेगा, फिर एम्स जम्मू, और ऐसे आपको ऑन एंड ऑन सब कुछ एम्स आपको अलॉट करने पड़ते हैं उसके अंदर। और उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर द काउंसलिंग इन बिटवीन द 2 to 3 डेज आपका रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट राउंड का। टोटल इसमें 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड इज द ओपन राउंड। तो फर्स्ट राउंड का आपको पहले सीट मिलती है, उसके अंदर आपको आपके पास ईमेल आएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है। लाइक आई गॉट द एम्स बीबी नगर फर्स्ट, and then it was my choice that I'll step into the second round because the BB Nagar was 24 hours far from my Delhi. So ऐसा होता है कि इसके अंदर आपको फिर चॉइस मिलती है कि आपको फर्स्ट कॉलेज आपको अलॉट हो, आपको वही डालना है, या फिर आपको सेकंड राउंड के लिए जाना है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो उसके बाद सेकंड राउंड होता है आपका। अगर आप सेकंड राउंड में भी आप चाहते हो कि नहीं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और ही चाहिए था, तो आप उसमें फिर ओपन राउंड के लिए आप जा सकते हो। ओपन राउंड में थोड़ा एक बीट टाइप का होता है कि उसमें क्या होता है कि आपको 25,000 बीट लगाना पड़ता है, और उसमें क्या होता है फिर आपको आप उसको अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो वेल एंड गुड, लाइक आपके 25,000 आपके वापस आ जाते हैं, आपके रिफंड हो जाते हैं वो आफ्टर कॉलेज अलॉट। एग्जैक्टली। नहीं होता तो ये पैसे डूब जाते हैं। Sorry. That's the harsh truth. Yeah. So, okay, you have explained very well. Now I am moving question, which is to Anisha again. So Anisha, can you please tell us about your life in AIMS Jammu, or what your working schedule in this college? Okay. Firstly, starting from morning, we reached at the hospital, like in the clinicals. We are posted from first year. We are posted. We are hopefully so lucky to posted in the department from first year. Firstly, at 8 o'clock we reach at the hospital. As per the we are divided into groups, 1 to 10 roll number, in other group 10 to 20 alag, and we are posted in different departments. So starting from that, from 8 to initially in the first year we are posted from 8 to 12 to the clinicals, and in second year we are posted from 8 to 1 o'clock, and then after that 1 to 2 it is a break time for lunch. Then after 2 to 5 we have classes, theoretical classes of different subjects, like in second year like MSN, CET, patho, genetics, community, like that. And after 5 o'clock we are
It's our We are time. at our hostel, we are just wiggling and Yeah, just roaming around. wiggling around. But to be honest, आने के बाद बिल्कुल कुछ टाइम नहीं हिम्मत मिलता नहीं होती, yeah. हम और हमारा बेड होता है, कुछ नहीं होता, रात में खाना खाते हैं ना, कुछ पढ़ने का, क्योंकि 8 से 5 तक हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उसके बाद हमारी कहने को हम कॉलेज में तो हमें गेम्स एंजॉय करनी चाहिए, घूमने चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता Like, है। हम सोचते भी, अगर हमने हाँ। कभी सोचा भी, लाइक न्यू ईयर पे सोचा था मैंने कि चलो ठीक है 5 बजे के बाद थोड़ा पढ़ने का शेड्यूल बनाएंगे और लाइक थोड़ा कुछ स्पोर्ट्स वगैरह प्ले कर लेंगे, बट इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं 8 to 5 कि कुछ भी नहीं होता है। ऐसा होता है बस रूम पे आओ, घर वालों से बात करो और बस खाना खाओ, सो जाओ। Like, we are- लेकिन हम yeah. इतने लकी हैं कि हम थोड़ा बहुत इंजॉय कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 6 का इतना अच्छा ग्रुप है, इतना हम मस्त चाय बनाते हैं, हमारी कंचन हमारी चाय बनाती है, हम चाय पीते हैं मस्त, इन द रूम हमारा एकदम एकदम होम वाइब्स देता है, हम सब मस्त बैठ के बातें करते हैं, हम रोज खाना भी यहीं पे खाते हैं और वो भी साथ में, हम रोज का डेली का डिनर हम साथ में करते हैं। Like, we are like a family of हाँ। 6 members. हम हर फेस्टिवल मनाते हैं, चाहे कॉलेज वाले मना रहे हो, चाहे हॉस्टल वाले मना रहे हो, ना मना रहे हो, हमने हर फेस्टिवल अपना रूम में मनाते हैं, सबका हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पहले हम बाहर जाके खा के आते हैं, फिर रात में हम मस्त अपनी एकदम रिलैक्स अच्छे मतलब एकदम कंफर्ट जोन में आके हम मस्त बातें करते हैं, सबके बर्थडे पे सबके राज खोलते हैं, थोड़े थोड़े पर्सनल लाइफ भी खुल जाती है सबकी, बट कोई नहीं, हमें इतना ट्रस्ट है कि हम इनको कुछ भी बता सकते हैं। Exactly. गाइज हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम एक ही जगह 2 बार भी घूमने चले जाते हैं, जैसे कि मानसर हम 4 साल में मुझे लगता है 4 बार जाके आएंगे वहाँ, Like, हर साल हमारा मानसर, क्योंकि हम इतना ही जा पाते हैं, टाइम नहीं मिलता हमें। ज्यादा दूरी की हम सोचते नहीं कि इतनी बड़ी ट्रिप मारेंगे, तो और बाकी पता ही आपको जम्मू जैसे में हम बड़ी ट्रिप का थोड़ा कम सोच पाते हैं। बाकी कुछ नहीं, बाकी लाइफ अच्छी है, Yes. मतलब रिग्रेट में या फिर घर पे रह के रिग्रेट करने से कि हाँ हम गए नहीं, उससे अच्छा है कि हम एम्स नर्सिंग ले लें, इट्स मच बेटर ऑप्शन That's है। the thing, that if you have the great people or nice people with you, Yes. you don't feel ever Yeah, bored. journey automatically becomes heaven. हर स्ट्रेस हर चीज को हम यूं ही निकाल देते हैं, वाइवा, प्रोसीजर्स, एग्जाम्स, प्रैक्टिकल सब निकल जाते हैं स्मूथली। Which is to again Kanchan. So Kanchan, what is रह the गया? तो पढ़ दूं मैं ये MBBS भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज खबर कभी किसी को जरूर नहीं बोलूं भाई। okay? So my next question, no, my next question is to. I'll fix the question first. Behind the question. Okay. This particular question is to Sarita again. So Sarita, what's your comment or what's your point of view or take on to the people who compare AIMS nursing or basically nursing nursing profession with MBBS? You know, what do you want to say to those people? देखो मेरे अकॉर्डिंग जो नर्सिंग और एमबीबीएस को कंपेयर करती ना, उनको शायद हेल्थ केयर के रिलेटेड जो है वो कम नॉलेज होती है। एमबीबीएस और नर्सिंग जो है दोनों अच्छे प्रोफेशन और दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, अगर एक के बिना एक नहीं चल सकता, दोनों अच्छे से काम करेंगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल मेरे पापा ने सेट किया, जैसे कि मेरी जो बड़ी दीदी है वो एमबीबीएस करते हैं और मैं जो है वो नर्सिंग कर रही हूँ, तो शायद हम दोनों का जो है एक म्यूचुअल होता है ना, हमें दोनों को कभी ऐसा लगा कि वो एमबीबीएस कर रही है मैं नर्सिंग कर रही हूँ, ना मेरे पापा ने कभी हमें फील करवाया कि वो एमबीबीएस कर रही है तू नर्सिंग कर रही है। और हम तो ऐसे सोचते हैं दोनों मिलकर एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे, वो प्रिस्क्राइब करेगी मेडिकेशन और मैं लगाती रहूंगी। Yeah. That's nice. So yeah, ये बहुत जरूरी था बताना, because people हमेशा compare करते हैं नर्सिंग, but let me tell you, like AIMS से अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, नर्सिंग ऑफिसर इन AIMS, then आपकी सैलरी इट्स वेरी हैंडसम सैलरी। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अभी 8 पे लागू होने के बाद जो है हमारी सैलरी 1 लाख पार जा चुकी है। And as of now, I think it's 96,000. या Yeah. और ये भी है कि अगर सब एमबीबीएस करेंगे तो फिर नर्सिंग कौन करेगा, बिकॉज नर्सेस आर द बैकबोन ऑफ Of द healthcare. हेल्थ केयर प्रोफेशन। Exactly, because we are the one who take care of the patients. We are the one who At are the best 24 hours with the patient, you know. Taking lots of blessing from the patient. Yeah, at the end of the day, like हमने तो receive भी किया blessings अभी तक. So it's, I think there is no regret of coming into this profession. और अगर एमबीबीएस और नर्सिंग को हम बेसिकली कंपेयर करने बैठे हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एक जैसी ही होती है, तो ऐसी कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम नर्स और दोनों अगर अपनी ईगो पे लेके अगर काम करेंगे तो शायद वो एक हेल्थ केयर टीम का हिस्सा नहीं माना जाता। Truly. तो कंपैरिजन हटा के एट द एंड हमारा फोकस होता है कि पेशेंट को एक बेटर केयर प्रोवाइड करना। Yeah. तो आई थिंक कंपैरिजन इज नॉट द थिंग। And it's not good. I think it's a shame onto those people who compare two different profession. आप कभी engineer और advocacy को compare नहीं कर सकते, तो how can you compare the nursing profession with the MBBS? लाइक माई फादर प्राउडली ही कैन से नाउ कि मेरी एक बेटी डॉक्टर और एक बेटी नर्स है। So that was, I think that was a biggest, it was very important to answer this question. You know, it was very important. So my next question to Kanchan again. So Kanchan, what is the one piece of advice or one line of advice you can give to the upcoming students who are going to or who are thinking of joining AIMS, Jammu or any AIMS as a BSc nursing student? So I'll say that you don't have to think that it's not a great profession. By the way, I will say that it's a very great profession,
आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम इस नर्सिंग में आके हम क्या ही कर लेंगे, बट यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, आपको सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा. आई थिंक योर जर्नी विल बी फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज एंड हर एक बात पे आप सोचोगे कि हमें और क्या जानना है. या देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिशंस. आई कैन से प्राउडली दैट आई वॉन्ट सो मेनी ऑफ देम. आई हैव लाइक 3 or 4 सर्टिफिकेट्स. गाइस इसके पास जो हम सबने की है Exactly. Even I got a prize money for the competition. और यहाँ पे बहुत लाइक मजे आएंगे आपको. मैं ये नहीं कहूंगी कि Sunday को बस हम बहुत भी स्ट्रेस कर है, ऐसा कुछ नहीं है. आपको फुल डे मिलेगा संडे का आउटिंग करेंगे, Yeah. एक्सप्लोर करने के लिए. और मैं बोलूंगी कि अगर आप एम्स जम्मू में आ रहे हो तो वेलकम गाइस. आई we are welcoming you as a ओपनिंग super हार्ट्स. senior. और स्पेशली रैगिंग लेते हैं हम बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. लाइक लगता है सबको कि कॉलेज में जाएंगे रैगिंग हो गया अगर हमारे सीनियर्स है तो ऐसा कुछ नहीं है कि रैगिंग ऐसा कुछ नहीं होता है. वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, वो आप पे डिपेंड करता है. अगर आपका एटीट्यूड We have बहुत to अच्छा है respect तो the वो seniors. बहुत अच्छा है. और So No I matter. think so basically at the end I think we can conclude that AIMS बहुत अच्छा है. And I think यही AIMS एक reason था कि मैं AIMS में हूँ. और I think मेरे पास 2 options थे to be honest. I was selected in MNS and I was allotted Command Hospital Lucknow in the MNS last year only. तो मैं वहाँ नहीं गई because मुझे एक free life भी चाहिए थी. And I think in MNS it's very hectic. You don't get a personal life. You don't get phone which you can use to. You can't talk to your parents daily. You know, so there are a lot of restriction over there. But I'm not saying that's not good. That's a different style of life. And I think this is the one which I deserve. And मुझे लगा ये वाला ज़्यादा comfortable है और इस वजह से मैंने choose किया. So I think अगर आप nursing कहीं से भी कर रहे हैं, वो आपकी choice yeah, आप क्या आपकी select choice करते हो, है. कैसे Hard option work, select yeah, करते हो. hard work never goes in vain. It's always pays back to you. No matter where you put your input, you will always get output of it. So कंप्लीट कर ली और इसके बाद हमें मतलब कि जॉब के जो चांस है वो कम नहीं है, कम बिल्कुल नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्स में नॉट सेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, जहाँ शायद अभी नई एम्स और भी खुलेंगी तो आपको अधिक से अधिक मौका मिलेगा. yes. तो ऐसा मत सोच रहा है कि नर्सिंग कुछ बस नर्सिंग कंपनी के तो नर्स ही बनोगे आप. ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन इवन गो इनटू द टीचर लाइन लाइक इन द लेक्चर और यू कैन बी द प्रिंसिपल. और इसमें बहुत ज्यादा कोर्सेज है, लाइक आगे भी बहुत ज्यादा Scope होता है, स्कोप होता है इसके अंदर. jobs एनएस, डीएनएस, CNO, there are so many Yes. of choices. So I hope that you got everything you wanted to get an answer of every question we have. I think मैंने सारी question put up कर दिए थे अपने इस piece of page में. But still कोई भी questions या कोई भी query अगर रह गई हो, so you can ask in the comment section. Yes. And Like at the please yes. subscribe also. और आपको एक अलग से एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको बता देंगे मिस कंचन कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको देने होते हैं. लाइक वो आप अच्छे से जान सकते काउंसलिंग हो. प्रोसेस, रिजल्ट प्रोसेस. गाइस प्लीज सपोर्ट आवर कंटेंट. Exactly. So yes, if you have found this video informative and fun, then please like and share this video and do not forget to subscribe it. Thank you so much. Bye. ठीक है. उसको कंचना बंद करा, मेरे फोन से ना मैं एक क्वेश्चन